Hi, good evening, everyone. I believe everyone is doing great. So, in this series of lecture, what we are trying to understand is class 10 mathematics. Class 10 के mathematics के NCERT बुक को हम completely सारे questions कर रहे हैं, right? So, in that process, the most important chapter is trigonometry. So, before we jump into the question, trigonometry के का कुछ brief introduction देख लेते हैं. What are the important things which we need for this chapter? Let's see that. Okay. So first of all, trigonometry, right? As the term is here, the term itself is very important. Trigonometry as it is, tri means triangle, right? Tri means three, gon means sides, and metry means measurement. Okay. So it's basically trying to talk about the measurement of all the three sides of trigonometry. So trigonometry करता क्या है? Trigonometry एक relation establish करता है between the sides and the angles. ठीक है, between the sides and the angle of triangle. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म मैंने लिखा है अभी, इसको हम बार बार रिवाइज करेंगे whenever we will find out the ratios. So then also we'll see that how the relation between the sides and the angles are established. ठीक है, so अभी the most important thing is in trigonometry we always deal with the right angle triangle. ठीक है, so हमेशा हम right angle triangle को यूज करते हैं. So let's make a right angle triangle here. Okay, let's just a second. Let's try to make a line at right angle triangle. And in that right angle triangle, we know that one angle will be 90 always. So एक angle तो 90 होगा और बाकी के दो जो angles होंगे, we will consider them to be, let's consider them to be like A, B, C. The triangle is right angle at 90. It's 90 here. So one angle is, let's say, let's take it as theta. Another angle, let's take it as phi. Few new terms we are introducing here, theta and phi. डरने की बात नहीं है, it's just a way of representing the angles, that's it. ठीक है, कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है. ठीक है, so let's first understand what is happening here. ठीक है, so in this when we talk about the ratio, जब हम रेशियो की बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जब डिफरेंट रेशियोज की बात करते हैं, so there are around 6 different ratios that we talk about. ठीक है, जो वेरी फर्स्ट रेशियो इज साइन. जो पहला रेशियो वो साइन है, उसको हम लोग SIN करके भी पढ़ते हैं. ठीक है, सो ये तो रेशियो है और इस रेशियो के साथ में कोई एक एंगल अटैच्ड होगा. फॉर एग्जांपल वी कैन से साइन A और साइन C, व्हाटएवर वी वांट टू राइट, बट अकेले जस्ट साइन लिखने का कोई मतलब नहीं है. ठीक है, सो साइन के साथ में कोई ना कोई एंगल अटैच होगा. क्यों अटैच होगा, विल सी दैट. ठीक है, सो सेकेंड थिंग इज साइन के बाद आता है कोसाइन, जिसको हम लोग कॉस भी बोलते हैं. ठीक है, लेट्स से कॉस ए. देन थर्ड सिमिलरली टेंजेंट, उसको हम लोग टैन बोलते हैं. कोटेंजेंट, उसको हम लोग कॉट बोलते हैं. राइट, सो आई एम जस्ट वेरी क्विकली राइटिंग डाउन ऑल द टर्म्स हियर. देन सीकेंट, उसको हम लोग शॉर्ट में सेक बोलते हैं. एंड सिक्स्थ वन इज cosine is done, then one is cosec. The last one which is made is cosec. ठीक है, so these are the 6 ratios that we talk about. ठीक है, now what is the important thing, and you know few things you have to remember here. The things which you need to remember is sin. जब लिखते हैं तो sin का मतलब क्या होता है? Sin का मतलब होता है perpendicular by hypotenuse. This you need to remember. Whenever we write sin, जब भी हम sin लिखेंगे इसका मतलब है perpendicular by hypotenuse. अब ये perpendicular कौन सा होगा, उसके लिए हमारे को एंगल लेना इंपॉर्टेंट है. ये डिपेंड करेगा कौन सा एंगल है. अगर एंगल ए है तो डिफरेंट परपेंडिकुलर होगा, एंगल सी है तो परपेंडिकुलर डिफरेंट होगा. विल सी दैट. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल
राइट एंगल ट्रायंगल में एक बेसिक चीज तो आई गेस सभी को पता होगा, दैट 90 के अपोजिट वाला साइड हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होता है और उसको हाइपोटेनस बोलते हैं. सो दिस साइड इज द लॉन्गेस्ट साइड एंड दिस इज कॉल्ड द हाइपोटेनस. ठीक है. एक साइड होता है बेस और एक साइड होता है परपेंडिकुलर. कौन सा साइड होगा बेस और कौन सा साइड होगा परपेंडिकुलर डिपेंड करता है कौन सा एंगल ले रहा हूं मैं. ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं कौन सा एंगल में ले रहा हूं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा साइड परपेंडिकुलर होगा कौन सा साइड बेस होगा. लेट्स सी एन एग्जांपल. सपोज मैं एंगल ए के साथ अभी काम कर रहा हूं. लेट्स से आई एम टेकिंग एंगल ए. सो एंगल ए के ऑपोजिट वाला साइड, एंगल ए के ऑपोजिट वाला साइड होगा परपेंडिकुलर. इन शॉर्ट आई एम राइटिंग पी. और अगर ये परपेंडिकुलर है सो बेस होगा ये. ठीक है. सो ए के ऑपोजिट वाला साइड, जो भी एंगल हम ले रहे हैं उसके ऑपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होगा और जो भी लेफ्ट आउट साइड जो बच गया वो होगा बेस. हाइपोटेनस विल ऑलवेज रिमेन द लॉन्गेस्ट विच इज अपोजिट टू 90. ठीक है. हाइपोटेनस इज फिक्स्ड, परपेंडिकुलर और बेस दोनों चेंज करेगा. ठीक है. सो हियर इफ आई राइट साइन ए, सो साइन ए का मतलब क्या है परपेंडिकुलर. नाउ वी नो विच इज साइड इज द परपेंडिकुलर. BC is the perpendicular and which side is the hypotenuse? AC is the hypotenuse. So in this triangle sin A का value क्या हुआ BC by AC. And if we know the length of BC, let's say length of BC 5 centimeter and length of AC is let's say 7 centimeter. अगर ये दिया हुआ है, length of the sides are given, so we can find out the value of sin A also, that is 5 by 7. है ना. So again coming back to the original that the statement that I have written in the beginning, trigonometry क्या करता है? It establish a relation between the angle and the sides of the triangle. ठीक है. So angle और sides of the triangle के बीच में एक relation establish हुआ. Clear? Okay. So sin A in this triangle is BC by AC. ठीक है. Now what will be cosine or cos? So cos will be, let's see here. cos होता है, अभी ये याद करने वाली चीज है. cos, whenever we write cos का मतलब है बेस बाय हाइपोटेनस. कौन सा बेस होगा डिपेंड करेगा कौन सा एंगल ले रहे हैं. अगर हम ए ले रहे हैं, एंगल ए, सेम एंगल ले रहे हैं, सो वी ऑलरेडी नो दैट बेस इज दिस वन ऑलरेडी मार्क्ड. ठीक है. बिकॉज एंगल ए के ऑपोजिट वाला तो परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनस ऑलरेडी फिक्स्ड है. सो बचा बी, सो बी ये होगा. ठीक है. So now if I write in terms of the side AB by AC. ठीक है. Okay. And very quickly coming to tan now. So tan का whenever we write tan का मतलब होता है, ठीक है, tan का मतलब होता है perpendicular by base. कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है डिपेंड करेगा कौन सा एंगल ले रहे हैं. सो यहाँ पे एंगल ए ले रहे हैं. So for angle A already we have defined that perpendicular होता है BC और बेस होता है AB. ऑलरेडी डिफाइंड है. सो इसको अगर हम साइड के टर्म्स में लिखेंगे, सो परपेंडिकुलर है BC और साइड है द बेस इज AB. ठीक है. नाउ द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी वेरी इजी. द रीजन इज दैट कॉट जो है, कॉट ए जस्ट tan A के ऑपोजिट होगा और जस्ट इसका रिवर्स होगा. ठीक है. लाइक कॉट ए यू कैन राइट एज बेस बाय परपेंडिकुलर. सेम वे सेक जो होता है वो कॉस का ऑपोजिट होता है. आई एम जस्ट मार्किंग हियर. ठीक है. सेक और कॉस एक दूसरे के जस्ट इनवर्स होते हैं. मतलब सेक ए का वैल्यू अगर मैं लिखूं यहाँ पे, सो वी कैन राइट हाइपोटेनस बाय बेस. कॉसेक साइन का ऑपोजिट होता है. सो अगर साइन है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सो कॉसेक होगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर. ठीक है. सो दिस कम्स एज अ
you know, this whole thing, this all the 6 ratios are very very important. और मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि कौन सा मैं एंगल लेता हूं उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करेंगी, ठीक है। सो मैं जस्ट एक एग्जांपल दिखा देता हूं कि हाउ इफ आई चेंज द एंगल, अगर मैं एंगल चेंज करता हूं, सो हाउ अदर थिंग्स विल आल्सो चेंज, ठीक है। सो लेट्स सी, अभी यहां पे देखो, एंड लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन आल्सो फॉर यू। ओके, सो इफ आई टेक नाउ साइन सी, बी तो ले नहीं सकते बिकॉज बी तो ऑलरेडी 90 है ना। सो एक ट्रायंगल में ऑलरेडी एक एंगल 90 है, सो वो तो नहीं ले सकते, उसको छोड़ के जो दो एंगल्स है उन्हीं के बीच में वट एवर वी वॉन्ट टू डू वी कैन डू, ठीक है। सो ऑलरेडी हमने ए ले रखा है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ आई टेक साइन सी। सो जब भी सी लेंगे तो सी के ऑपोजिट वाला साइड, अभी सी के ऑपोजिट वाला साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर। रेड में लिख रहा हूं मैं जानबूझ के, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। अभी सी के साथ में ले रहे हैं, राइट। सो सी के ऑपोजिट वाला साइड हो गया परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस ऑलरेडी फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होने वाला क्योंकि वो 90 का ऑपोजिट है, वो वहीं पे रहेगा। बट बेस परपेंडिकुलर ये हो गया, सो जो रिमेनिंग साइड होगा वो बेस हो जाएगा। सो क्या हो गया, परपेंडिकुलर और बेस दोनों आपस में जस्ट एक्सचेंज देयर पोजीशंस, राइट। सो अभी साइन, व्हेनेवर आई एम राइटिंग साइन, साइन का मतलब क्या है, साइन का मतलब सेम है, पी बाई एच ओनली। जो साइन रेशियो है उसका वैल्यू हमेशा पी बाई एच ही रहेगा, बट कौन सा पी होगा वो डिपेंड करेगा सी पे, ठीक है। सो बिकॉज हमने सी लिया है, सो सी के ऑपोजिट वाला साइड है ए बी, सो ए बी हमने ले लिया, और ए सी। सो ए बी बाई ए सी विल बिकम आवर साइन सी, ठीक है। सो जस्ट टू गिव यू दिस इंफॉर्मेशन, विल कम बैक टू दिस अगेन जब हम लोग इसी में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। सो वी हैव टू कम बैक टू दिस अगेन वी विल डिस्कस इट देयर, बट दिस वाज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, सो दैट आगे जाकर के जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, इसी के ऊपर जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, सो यू शुड हैव दिस आइडिया। ओके, so today I'll stop here. In the next class we'll be starting up with the first exercise of NCERT और सारे के सारे questions करने वाले हम लोग, ठीक है। So it is going to be very interesting और सारे questions हम लोग फटाफट करेंगे, ठीक है। So मिलते हैं फिर next class में। Thank you everyone then. Thank you for joining.